Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10, Lesson number 6. Today our main topics are first one is SAARC. In this we will cover Pakistan relations with SAARC countries, for example Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan. Our second point is Pakistan's contribution toward peace in the world. Our first topic is topic number 5, SAARC organization. Questions which are we cover in this topic number 5. Question number 11, 12 and 30. Question number 11 is what are the objectives of SAARC organization? Question number 12, discuss the relations between Pakistan and Bangladesh. Question number 13, discuss the relation of Pakistan with Sri Lanka, Nepal, Maldives and Bhutan. Introduction of SAARC. The South Asian Association for Regional Cooperation is an organization of South Asian nations founded in December 1985 and dedicated to economic, technology, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. Its head office in Kathmandu, Nepal. The organization promotes development of economic and regional integration. It launched the South Asian Free Trade Area in 2006. The SAARC maintains permanent diplomatic relations at the United Nations as an observer and has developed links with multilateral entities including the European Union. Members of SAARC. The South Asian Association for Regional Cooperation is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Objectives of SAARC. Following are the main objectives of this organization. First one is promoting and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia. Second one is collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields. Next one is strengthening cooperation with other developing countries. Next, strengthening cooperation among themselves in international forum on matters of common interest and in different fields. Fifth one is promoting the welfare of people of South Asia and to improve their quality of life. Develop strong relations between the SAARC members. Next one is accelerating economic growth, social progress, and cultural development in the region, and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential, and extend cooperation to the other trade blocs. Pakistan relations with SAARC members. Pakistan relation with SAARC members. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Pakistan has good relations with Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, and Sri Lanka. Today we will discuss about Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, and Sri Lanka. Our first relationship is Pakistan relations with Bangladesh.
Pakistan's relation with Bangladesh. Pakistan and Bangladesh are both South Asian Muslim majority countries. Following the end of British Raj, the two countries formed a single state for 24 years. The Bangladesh Liberation War in 1971 resulted in the secession of East Pakistan as the People's Republic of Bangladesh. Our first point is recognition of Bangladesh. Pakistan recognized Bangladesh in Lahore in 1974 जब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो लाहौर के अंदर सेट हुई 1974 के अंदर तय पाई और हुई उसके अंदर पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया एज अ स्टेट. सेकेंड वन इज डिफरेंट एग्रीमेंट्स. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1976 के अंदर जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो हैं उनको साइन किया गया. सबसे पहले जो एग्रीमेंट तय पाया या साइन किया गया वो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड था. सबसे पहले दोनों स्टेट्स के दरमियान टेली कम्युनिकेशन लिंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, उसको स्टैब्लिश किया गया. उसके बाद टेलीफोन एंड टेलीप्रिंटर सर्विसेज वर इंस्टीट्यूटेड बिटवीन रावलपिंडी एंड ढाका ऑन 13 February 1976 on experimental basis. और इन एग्रीमेंट्स की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए. इसके बाद जो एक मुआहदा तय पाया या एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाया वो ढाका के अंदर 24 जुलाई 1976 के अंदर पाया, जिसके अंदर ये चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट किया गया कि दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी डेलीगेशन एक्सचेंज करेंगे और उसके साथ साथ बैंकिंग और शिपिंग जो है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा. Our next point is Economic Commission. On 21st July 1979, a joint economic commission was established between Pakistan and Bangladesh. और बेसिकली इनका मकसद इकोनॉमिक कमीशन को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको प्रमोट करना दोनों स्टेट के दरमियान. Our next point is first meeting of the heads of state. अब सार्क जो है उसकी फर्स्ट हेड मीटिंग जो है वो 1985 के अंदर बांग्लादेश के अंदर तय पाई. उसके साथ साथ सेवन हेड मीटिंग जो है सार्क की वो भी 1993 के अंदर ढाका के अंदर तय पाई. The capital of Bangladesh was where many steps were taken to promote trade among the SAARC countries. और बहुत से जो अहम इक़दामात हैं SAARC से रिलेटेड वो बांग्लादेश के अंदर जो हैं वो तय पाए. SAARC कंट्रीज के जो जितने भी इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया. उनके दरमियान जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स किए गए वो सब बांग्लादेश का जो हेड है, कैपिटल है ढाका, उसके अंदर तय पाए. Next one is agricultural machinery. An agreement was signed between Pakistan and Bangladesh in 1993, according to which Pakistan would provide 300 tractors to Bangladesh in the future 2 years. यानी आने वाले जो 2 साल हैं उनके अंदर 300 के करीब ट्रैक्टर जो है पाकिस्तान बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा. और जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसके तरह जो एग्रीमेंट तय पाया उसके अंदर ये चीज़ भी फाइनल की गई कि कितने ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान जो वो एग्रीकल्चर के लिहाज से बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा. नेक्स्ट वन इज 30th हेड कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क. The 30th head conference of SAARC was held in Dhaka in 2005, in which Prime Minister of Bangladesh Khaleda Zia was elected as President of SAARC for the next year. और इस दौरान जो पाकिस्तान है उसने फिर कश्मीर इशू जो है, डिस्प्यूट जो है, कश्मीर डिस्प्यूट है, उसको उठाया सार्क मीटिंग के अंदर और उसके सोल्यूशन के ऊपर बात की कि उसका जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तब तक रीजनल जो अगर हम कहें कि हमारा जो एशिया है, साउथ एशिया, उसके अंदर पीस कायम करने के लिए ज़रूरी है कि जो कश्मीर इशू है, कश्मीर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व किया जाए. उसके ऊपर बात की और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इस बात के लिए सपोर्ट किया.
Our next point is mutual trade. Bangladesh offered to export jute, tea and carpet to Pakistan. प्लस इसके साथ साथ वो इंपोर्ट करेगा राइस, आयरन, रेलवे कैरेजेस एंड अदर स्टील आइटम्स फ्रॉम पाकिस्तान। यानी दोनों मुल्कों ने अपने दरमियान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है उसके थ्रू या ट्रेड के थ्रू एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की। पाकिस्तान जो है बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है। इसी तरह बांग्लादेश भी बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। Our next relationship is Pakistan relations with Sri Lanka. Pakistan relations with Sri Lanka. Pak-Sri Lanka relations refers to bilateral relations between Pakistan and Sri Lanka. In past, Pakistan assisted the government of Sri Lanka in supplying high-tech military equipment to the Sri Lankan army in the civil war against the Liberation Tigers of Tamil Nadu. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is an island country in the northern Indian Ocean off the southern coast of the Indian subcontinent in South Asia. First point is source of income. Its main source of income is fishing, tea, coconut, and rubber is in plenty in Sri Lanka. It exports these goods and earns enough foreign exchange. पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ तजारती ताल्लुकात जो है वो कायम किए और बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। Our next point is major religions. The major religions here are Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity. चूँकि वहाँ पे इस्लाम भी मौजूद है इसलिए भी पाकिस्तान के रिलेशन जो है श्रीलंका के साथ अच्छे हैं। Our next point is Sixth SAARC Head Conference. In 1991, the Sixth SAARC Head Conference was held in the capital of Sri Lanka. Different proposals for controlling the growing trades of terrorism and violence in Asia were discussed. और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ विजिट किया और उसके साथ साथ परमानेंट पीस के लिए एक जो आइडिया है वो भी दिया। इसके साथ साथ जो यूएनओ चार्टर्स जो हैं उसके ऊपर जो है वो बात की गई और उसके साथ उन्होंने ये भी जो है मशवरा दिया कि जो हमारे एटॉमिक वेपन्स हम लोग बना रहे हैं उनको जो है स्टॉप किया जाए, उनको रोका जाए, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको रोका जाए और सख्ती के साथ यूएनओ चार्टर जो है उसको फॉलो किया जाए। 20th SAARC Head Conference. The 20th SAARC Head Conference was held in 1998 in Colombo, the capital of Sri Lanka, in which the SAARC countries stressed for eradicating poverty and promoting joint collaboration. इसके अलावा जो पाकिस्तान और श्रीलंका जो है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया कि जो गुर्बत है उसको ख़त्म किया जाएगा और उसके साथ साथ जो कोलैबोरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसी दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ रिलेशंस जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। Our next point is defense cooperation. Pakistan is the second largest trading partner of Sri Lanka in South Asia. Sri Lanka was the first country to sign a free trade agreement with Pakistan, which became operational from June 12, 2005. 4,000 items can be imported to Pakistan from Sri Lanka. Bilateral trade between the two countries was 400 US dollars millions in early 2010. इसके बाद 2010 के अंदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने $250 मिलियन जो है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान हुई करवाई। उसके साथ साथ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रीच्ड $500 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2010। यानी दोनों स्टेट्स के दरमियान जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है।
जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान रिलेशंस विद नेपाल। Nepal-Pakistan relations are bilateral relations between the Federal Democratic Republic of Nepal and the Islamic Republic of Pakistan. Nepal and Pakistan, both Himalayan states, established diplomatic relations on 29th March 1960. These relations were fully established between 1962 to 1963. Both nations have since sought to expand trade, strategic, and military cooperation. The connections were served in 1972, followed by Nepal recognition of Bangladesh, but were later re-established. The third SAARC Head Conference was held in 1987 in Kathmandu, the capital of Nepal. In this conference, it was decided for exclusion of India. The other six countries had the same idea and thinking. All agreed to combat the food crisis in the SAARC countries. इस दौरान पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो जो सार्क स्टेट्स थी उनके साथ काफ़ी अच्छे हुए, लेकिन नेपाल के साथ पाकिस्तान के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हुए और दोनों ने मिलकर फूड क्राइसिस जो है उसके ऊपर बात की और उसको उस फूड क्राइसिस के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए। नेक्स्ट वन इज 11th SAARC conference. The 11th SAARC conference was held in 2002 in Kathmandu, the capital of Nepal. In this conference, the resolution was passed for economic and social development प्लस पॉवर्टी को जो है ख़त्म करने के लिए बातचीत की गई, उसके साथ हेल्थ इश्यूज जो थे और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए बात की गई और दोनों स्टेट्स ने मिलकर टेररिज्म जो है उसको भी डिस्करेज किया, उसके ऊपर भी बात की। नेक्स्ट वन इज डिफेंस कॉर्पोरेशन. In the recent years, both countries began developing military cooperation with Nepal importing arms from Pakistan. इसके साथ साथ डिफेंस के ऊपर भी दोनों स्टेट्स के दरमियान मिलिट्री एग्रीमेंट्स जो हैं वो हुए हैं कि दोनों मिलकर जो हैं पीस को कायम करने की कोशिश करेंगे, अमन और अमान को कायम करने की साउथ एशिया के अंदर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान रिलेशनशिप विद मालदीव्स. Maldives Pakistan relations are foreign relations between Pakistan and Maldives. Both countries have friendly relationship due to the same religious, social, economical aspects. As both countries have Islam as the state religion and are members of Organization of Islamic Cooperation plus member of SAARC. Maldives consists of 2,000 islands in the Indian Ocean. The major profession of people is fishing. मलाई वहाँ का कैपिटल है। कोच एंड सी शेल्स जो हैं उनको कलेक्ट करके एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज को, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा डेकोरेशन पीसेस और इस तरह की चीज़ें उनसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ SAARC कॉन्फ्रेंस. द फिफ्थ SAARC कॉन्फ्रेंस was held in 1990 in Malai, the capital of Maldives. The president of Maldives, Mamoon Abdul Qayyum, played the role of the host. The Pakistan delegation was headed by the Prime Minister Nawaz Sharif. और इसके अंदर दोनों स्टेट से मिलकर स्मगलिंग जो है उसकी रोकथाम के ऊपर बात की कि जो स्मगलिंग की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग जो है उसको रोकने के ऊपर बात की। नेक्स्ट वन इज 12th SAARC summit. Maldives attended the 12th SAARC summit at Islamabad in January 2004. On the sidelines of Smith, President and Prime Minister of Pakistan had bilateral meetings with the President of Maldives. और इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और मालदीव्स के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। The Foreign Secretary held bilateral consultations with the Foreign Secretary of Maldives on the sideline of the SAARC Standing Committee meeting in Kathmandu.
In November 2004, Pakistan Prime Minister Shaukat Aziz visited the Maldives and met the President Mahmoud Abdul Qayyum. Aziz offered to extend credit facilities, scholarships, collaboration in scientific and technology fields. और इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स जो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी बात की गई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी मालदीव के साथ बात की गई। उसके बाद 25 जून 2017 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है उन्हें इनवाइट किया गया है इंडिपेंडेंस डे ऑफ मालदीव्स पर। उसके बाद 2018 के अंदर मालदीव्स पॉलिटिकल क्राइसिस रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली एज द opposition लीडर मोहम्मद नशीद इनवाइटेड India to launch a military intervention on his behalf against the government. इसके बाद प्रेसिडेंट यामीन जो है सेंट इनवॉइस टू friendly countries which included Pakistan. Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa visited Maldives in late March 2018 and became the first foreign high-ranking official to visit the country since the crisis began in February. दोनों स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात जो है और ज़्यादा बेहतर हुए और उसके बाद जो है मालदीव्स फाइव पाकिस्तान टू सपोर्ट इंडिया ऑन कश्मीर इशू बाय कॉलिंग इट एन इंटरनल मैटर। Pakistan relations with Bhutan. Pakistan and Bhutan relations. Pakistan is one of the few countries with which Bhutan maintains diplomatic relationship. Both countries are members of SAARC. Trade and bilateral relationship between the two countries can be largely regarded as being insignificant and the diplomatic relationship as being largely symbolic. They are both Himalayan states and have two common neighbors, China and India. Bhutan has close relations with India, but Pakistani relations with India are more tense, so India has at times viewed Pakistani approaches to Bhutan with suspicion. Basically, Bhutan is a mountainous country और वहाँ के जो लोग हैं वो मंगोल ट्राइब जो है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे भूटान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट मौजूद है, इसीलिए वहाँ के लोगों का जो पेशा है वो दरख्तों को काट कर अपना रोज़गार जो है वो हासिल करना है। उसके अलावा वहाँ की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैलीज में रहती है और उनका काम जो उनका जो प्रोफेशन है वो मवेशी पालना है। इसके अलावा वहाँ का जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म में ज़्यादातर लोग जो हैं बुतों की पूजा वगैरह करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो भूटान के रिलेशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने भूटान की इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर कॉटन, yarn, आर्टिकल्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स, कॉटन, फैब्रिक, स्पोर्ट गुड्स एंड लेदर। ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है भूटान को और इसके अलावा इंपोर्ट करता है पाकिस्तान रॉ जूट, ऑयल सीड्स, chemical materials products वगैरह। Economic cooperation between the two countries is minimal owing to high freight rates and difficulties to access landlocked Bhutan. दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप अच्छे हैं लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो है रखना वो मुश्किल है क्योंकि भूटान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसके अलावा in 2008 to 2009 the total bilateral trade passed $500 million. In the period 2007 to 2011 only 11 Pakistanis visited Bhutan as tourists. फिर दोनों कंट्रीज के दरमियान जो ताल्लुकात है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बड़े अच्छे हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं। सिर्फ सार्क के अंदर ही नहीं डिफरेंट जो मीटिंग्स होती हैं स्टेट्स की उनके अंदर भी दोनों के ताल्लुकात जो होते हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और दोनों के जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपस में दोनों के जो डेलीगेशन हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं बातचीत करते हैं। पाकिस्तान के साथ भूटान के ताल्लुकात तब खराब हुए थे जब
उसने सबसे पहले बांग्लादेश जो है उसको एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ऑफर स्कॉलरशिप्स टू भूटान स्टूडेंट्स, particularly in मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, और मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर जो है स्कॉलरशिप्स जो है पाकिस्तान ने भूटान स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने का जो है एग्रीमेंट किया, और कहा कि वो जो भूटान के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स जो है प्रोवाइड करेगा, ताकि वो आसानी के साथ मेडिसिन और इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज हैं वो पाकिस्तान से हासिल कर सकें। इस तरह पाकिस्तान और भूटान के ताल्लुकात और बेहतर हो गए। Our next topic is topic number 6, Pakistan's contribution toward peacekeeping in the world. Question which are we cover in this topic number 6. Question number 19. Discuss Pakistan's contribution toward peacekeeping in the world. Pakistan's contribution toward peacekeeping in the world is mentioned below. First one is Pakistan and Charter of UNO. Pakistan has always respected the Charter of United Nations. और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की कोशिश होती है कि पीसफुल मैनर में तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको सॉल्व करे, जो भी उसकी डिफरेंट स्टेट्स के साथ होते हैं। इट सपोर्ट्स द यूनाइटेड नेशन इन इट्स एफर्ट टुवर्ड्स आर्म रिडक्शन, और आर्म रिडक्शन के हवाले से यूएनओ जो है वो जितनी भी कोशिशें कर रहा है उसको पाकिस्तान ने हमेशा सराहा है और सपोर्ट किया है। सेकेंड वन इज पॉलिसी ऑफ सोशल बाइकॉट. When the United Nations adopted the policy of social boycott of South Africa and Rhodesia because of racism in these countries, पाकिस्तान जो है उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इन कंट्रीज के साथ कट डाउन कर दिए जब यूएनओ ने इन स्टेट्स के साथ सोशली जो है बाइकॉट किया। नेक्स्ट वन इज इंडो-पाक वॉर. The Indo-Pak War was in September 1965, so at the intervention of the United Nations, Pakistan accepted the ceasefire. जैसे ही यूएनओ जो है उसने बीच में आकर दोनों के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने यूएनओ के तमाम अहकाम जो है उनको माना और सीज फायर कर दिया। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. Pakistan has always supported the oppressed nation's right of self-determination. इसी वजह से वो पाकिस्तान जो है इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर और पैलेस्टाइन जो है उसके जो लोग हैं उनको हमेशा से सपोर्ट करता है, क्योंकि हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का हक है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर एनर्जी. पाकिस्तान हैज ऑलवेज सपोर्टेड द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी अगर पाकिस्तान जनरेट कर भी रहा है तो वो सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से है, ना कि वॉर के हवाले से। नेक्स्ट वन इज आर्म्ड फोर्सेस. फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एट द behest of the United Nations, Pakistan sent its army to Congo and several other countries in the world. और यूएनओ की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को बहुत बार भेजा ताकि वो यूएनओ की डिफरेंट जो मौके हैं उन पे मदद कर सके और दुनिया के अंदर अमन अमान जो है वो कायम किया जा सके। Our next point is independence of Indonesia. पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस का जो इशू है उसको यूनाइटेड नेशन जो है उसके अंदर प्रेजेंट किया, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के ऊपर जोर डाला कि वो पीसफुल जो तरीके से जो है ऐसी स्टेट्स के मसाइल को जो है वो हल करें, ताकि दुनिया के अंदर अमन और अमान जो है वो कायम किया जा सके। मेंबरशिप ऑफ यूएनओ. इसके साथ साथ पाकिस्तान ने डिफरेंट स्टेट जहाँ खुद मेंबरशिप यूएनओ की जो है वो अपनाई, उसके साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स को भी यूएनओ का मेंबर बनाने में मदद की, जैसे कि चाइना को, श्रीलंका, नेपाल, लीबिया एक्सेट्रा, इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनको भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाने में मदद की। इंडिपेंडेंस ऑफ अल्जीरिया. Pakistan supported the independence of Algeria and made full efforts for Tanzania and Morocco's independence and sovereignty. डिफरेंट स्टेट्स की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक हर इंसान को, हर स्टेट को आज़ादी के साथ रहने का हक है।
Next one is Suez Canal issue. Pakistan supported Egypt stands on Suez Canal issue. पाकिस्तान ने सुएज कैनाल इशू के ऊपर इजिप्ट जो है मिस्र जो है उसकी हेल्प की, उसके लिए स्टैंड लिया यूएनओ के अंदर. नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ बैतुल मुकद्दस. It presented the resolution in General Assembly to free Baitul Muqaddas from Israel's occupation and had it passed with majority. अब जो इसराइल ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ था उसके खिलाफ भी पाकिस्तान जो है उसने रेजोल्यूशन जो है जनरल असम्बली के अंदर पेश किया और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ पास भी करवाया ताकि वहाँ के अंदर अरब के अंदर जो अमन व अमान है उसको कायम रखा जा सके. वहाँ के लोगों का जो लोगों को जो तकलीफ या परेशानी का सामना है उसको ख़त्म किया जा सके ताकि पूरी दुनिया पुरसुकून तरीके से रह सके. नेक्स्ट वन इज रोल अगेंस्ट टेररिज्म. Pakistan is playing a very effective role against terrorism and extremism in the world. स्पेशली अफगानिस्तान के मामले में और डिफरेंट जो स्टेट्स जो टेररिज्म से रिलेटेड इशू पे जो है उसको फेस कर रही है इशू को, उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट को सपोर्ट की और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा. लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल जो है टेररिज्म के सिलसिले में उससे पीछे नहीं हटा, उसको मुकम्मल तौर पे अदा किया. और इसी तरह पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत सी जानों का ज़िया जो है पाकिस्तान के अंदर हुआ. स्पेशली टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ते हुए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया. Okay dear students, today your home task is learn the question number 11, 12, 13 and 19. Dear students, I hope you understood all the topics and questions very well. Learn them on time. Thank you.